Grace is when you get the good things that you don't deserve. अनुग्रह ये होता है जब आप अपने जीवन में अच्छी बातों का अनुभव करते हैं जिसके योग्य भी आप नहीं हैं। Mercy is when you are spared from the bad things that you deserve. और दया ये होती है कि आपको बख्शा जाता है, जो बुरी बातें आपके जीवन में होनी चाहिए वो बातें होती नहीं है। This morning that the Lord Almighty want to extend His tender mercies to somebody out there in the audience. इस सवेरे के वक्त जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं उनमें से चंद लोगों के प्रति परमेश्वर अपनी कोमल दया को दर्शाना चाहते The हैं। Lord spoke to me expressly concerning somebody out there among the audience, और परमेश्वर ने किसी के बारे में जो है मुझसे बात की and He said that you are feeling as though that you're moving from bad to worse. और परमेश्वर ने कहा कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप बुरे से बदतर अवस्था में जा रहे हैं। You're feeling as though that you have been thrown from the pan to the fire directly. आपको ऐसे लग रहा है कि आप मानो कढ़ाई से निकलकर आप आग में गिर गए हो। You're feeling as though that you've been consumed every single day. आपको ऐसे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन मानो आपको आप कम होते जा रहे हो। The Lord Almighty has a word of encouragement to you. परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहन करने वाले शब्द आपके लिए हैं। If you think you're the only one who's going through this, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल ये आप ही के साथ हो रहा है, let me tell you at the outset it is not so. तो मैं आपसे कहूँ ऐसा नहीं है। Israel went through similar kind of situations. इज़राइल भी ऐसी परिस्थिति से गुजरा Their case was getting only badder and worse every single day. और दिन प्रतिदिन इज़राइल की अवस्था, उसकी दशा जो है बद से बदतर हो रही थी, Especially during the times of Jeremiah. विशेष रूप से यिर्मयाह के समयों में। It's not that God was bad to them. ये नहीं कि परमेश्वर उनके प्रति बुरे थे, It's just the day Israel had gone away from God. ये है कि इज़राइल परमेश्वर से दूर चले गए थे। When they had drawn away themselves from the light, और जब प्रकाश से वे दूर चले गए थे, they were supposed to be, they were bound to suffer the consequences of being in the thick darkness. तो फिर क्योंकि अंधकार में चले गए थे तो उसका वो परिणाम भोग रहे थे। Jeremiah, who's known as a weeping prophet, और यिर्मयाह जिसको जाना जाता है कि ये रोने वाला नबी है, who only wept and wailed throughout his prophetic books, अपने नबूवत की किताबों में जो है हम देखते हैं कि वो रोते हैं, विलाप करते हैं। titled one of his books as Lamentations. और उनकी एक पुस्तिका का नाम विलाप गीत है। Why is it called Lamentations? विलाप गीत करके क्यों कहा गया है? Because she was full of tears for Israel. क्योंकि इज़राइल के लिए वो रो रहे थे, बिलक रहे थे, विलाप कर रहे He थे। began this book of lamentation with the first verse of the first chapter. और ये विलाप गीत के किताब को पहले अध्याय पहले वाक्य में He says he called Israel a widow. और यिर्मयाह इज़राइल को विधवा कर कर बुलाता He है, called Israel a slave. एक दासी करके बुलाता है। Imagine how worse the things were. आप देखिए कि चीजें कितनी बद से बदतर हो गई थी। Every single verse that you read in this particular book, और इस विलाप गीत में एक एक वाक्य को जो आप पढ़ते हो, every chapter and every verse only gets worse and gives us a picture of how bad the things were getting for हर Israel. एक वाक्य और हर एक अध्याय में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि इज़राइल के लिए चीजें जो है कैसी बुरी हो रही थी। In the midst of that, इस सारी चीजों के बीच there's something that happened in chapter 3. तीसरे अध्याय में कुछ होता है। And he says, I'm going to read from chapter 3 verse 21 or 23. Here it says, I'm going to read from verse 18 downwards so that we get a glimpse of what he's writing here. It says, and I said, my strength and my hope I have perished from the Lord. Remember my affliction and roaming, the wormwood and the gall. Verse 20, my soul still remembers and sinks within me. Well, till verse 20 is talking about his soul sinking within him. मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। लिखा हुआ है विलाप गीत 3 अध्याय और 18वें वाक्य से, इसीलिए मैंने कहा मेरा बल नाश हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा फिरना, मेरा नाक दौने और विष का पीना स्मरण कर, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। वो कह रहा है कि मेरा प्राण ढला जाता है। He says, my soul still remembers and sinks within me. और वो कहता है कि मेरा प्राण जो है वो याद करते हुए ढला जाता है।
Jeremiah and his soul is sinking, he's sulking here. यहाँ पे हम देखते हैं कि यिर्मयाह और उसका प्राण मानो ढला जा रहा है। Listen to this verse 21 to 23. 21 से 23 को सुनिएगा। This I recall to my mind. परंतु यह मैं स्मरण करता हूँ, When I'm sulking and when I'm sinking like that within me, जब मैं दुखी हूँ और मेरा प्राण ढला जा रहा है। Jeremiah says that I recall to my mind. यिर्मयाह कहते हैं, परंतु यह स्मरण करता हूँ, I remember in my heart. मेरे हृदय में मैं याद रखता हूँ। What is it that he recalls and और remembers? क्या वो याद करते हैं और क्या वो स्मरण करते हैं? He says, therefore, because I recall and remember, I have hope. और क्योंकि मैं स्मरण करता हूँ और क्योंकि मैं याद रखता हूँ तो मुझ में आशा है। What is it that is recalling and is remembering? क्या वो याद कर रहा है और क्या वो स्मरण कर रहा है? Verse 22 says that through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. Verse 23, they are new every morning, great is your faithfulness. 22वां वाक्य, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकृपा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। 23वां वाक्य, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। My brothers and my sisters, Jeremiah recalls in this place that God's love, God's compassion, God's faithfulness is from everlasting to everlasting, and he can draw on it every single day afresh. और यहाँ पे यिर्मयाह स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की विश्वसनीयता जो है हर दिन प्रतिदिन नई होती जाती है, और वो इस बात को स्मरण करता है। Isn't that a beautiful thing to happen? क्या ये सुंदर बात नहीं है? My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, it's like a bank account. ये ऐसे है मानो बैंक अकाउंट की तरह। In a regular bank account, और सामान्य रूप से अगर बैंक अकाउंट को हम देखते हैं, how much you deposit, only that much we can withdraw. उस बैंक के खाते में जितना आप डालते हो उतना ही आप निकाल सकते हो। But not in the account of God. लेकिन परमेश्वर के अकाउंट में ऐसा नहीं होता। God has an account. परमेश्वर का अकाउंट है, In this particular account, और इस अकाउंट में you have an unlimited access, unlimited withdrawals. You will never over withdraw. हम और आप जो है परमेश्वर के अकाउंट से हम और आप जो है जितना हमें चाहिए उतना हम जो है निकाल सकते हैं, कभी खाली नहीं होगा, या फिर ज्यादा हम कभी निकाल नहीं पाएंगे। You have the unlimited access to His love, His compassions, and His mercies. उनकी दया, उनकी करुणा, उनके प्रेम का जो है आप निकाल सकते हैं, उनसे निकाल सकते हैं, उनके अकाउंट से निकाल सकते हैं, और वो कभी खत्म नहीं होगा। He says they are new every morning. वो कहते हैं यिर्मयाह कि प्रति भोर को वो नई होती जाती है। It's pretty new every single morning. प्रति भोर को नई होती जाती है। This compassion of God, this love of God, this faithfulness of God challenges you and provokes you to draw more to experience His goodness and His mercies in your life. ये परमेश्वर की दया, ये परमेश्वर की कृपा, ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उनका प्रेम जो है जितना हम निकाले उतना जो है हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। I want to give you the dictionary meaning of compassion. करुणा का जो डिक्शनरी मीनिंग है उसको देख लेंगे। What is the dictionary meaning? उसका क्या मीनिंग है? It's tenderness of heart that disposes a person, overlook the injuries, or treat an offender better than he or she deserves. अंग्रेजी में जो इसका डेफिनेशन ये है कि बिल्कुल ही कोमल हृदय के साथ जो है आप उस व्यक्ति की ओर देखते हैं, और जो उन्होंने किया हुआ है, जो भी घाव दिया हुआ है या फिर कुछ भी उन्होंने गलत व्यवहार किया हुआ है, वो सारे व्यवहार या सारे गलतियों को नजरअंदाज करना। Every single morning you wake up, हर सवेरे के वक्त जब आप उठते हैं, I want you to tell the Lord, हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर से कहे, Lord, that I had a bad day, if at all that you're going through a one. अगर आपका बुरा दिन जा रहा है तो परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरा बुरा दिन है। I have consumed all your love, all your compassion, all your faithfulness yesterday. और कल जो है मैंने आपके पूरे प्रेम को मानो उपयोग किया, पूरे दया को, करुणा को उपयोग की, और आपके विश्वास योग्यता को उपयोग कर लिया है। But I know, Lord, that there is
a fresh quota waiting for me to withdraw from. लेकिन आज मैं जानता हूँ परमेश्वर की मेरे लिए जो है ताज़ा कोटा है और मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ। My brothers and my sisters, listen to this. God spoke concerning Israel. और मेरे भाइयों मेरी बहनों मुझे सुनिएगा, परमेश्वर ने इज़राइल को लेकर ये बात की है That His tender mercies, His faithfulness, His love concerning them will never cease. कि उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी विश्वास योग्यता उनको लेकर कभी खत्म नहीं होने वाली है। Let me remind you that you are the spiritual Israel. मैं आपको कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि आप आत्मिक इज़राइल है। Let me remind you that you are the first partaker of the great covenant. और मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो वाचा के पहले हकदार है। You have that covenant in the Lord Jesus यीशु Christ. मसीह में हम वाचा में बंधे हुए हैं। Don't worry, don't be negative, just withdraw the love, withdraw His compassion, withdraw Him from His faithfulness. आप चिंता मत करना, उनके प्रेम से आप निकालना, विड्रॉ करना, उनके करुणा से आप निकालना, उनके विश्वास योग्यता से आप निकालना। If somebody asks you अगर what's कोई new, आपसे प्रश्न पूछता है कि नया क्या है, answer them. His love, His compassion, His faithfulness is fresh for me today, this morning. आप जवाब देना और कहना कि उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी विश्वसनीयता मेरे लिए इस सवेरे के वक्त के लिए या इस दिन के लिए नहीं है। I cannot be consumed because the Lord watches over me. मेरा नाश नहीं हो सकता है क्योंकि परमेश्वर की नजर मेरे जीवन पर है। As you remember these three things, जैसे आप स्मरण करते हैं ये तीन बातों को, from the pitch darkness, और अंधकार से, घोर अंधकार से you will slowly begin to move towards the light of His goodness. आप धीरे धीरे उनकी भलाई के प्रकाश की ओर आते रहोगे। You will come to His perfect will, आप उनकी सिद्ध इच्छा में आ जाओगे, wherein you will stop experiencing the problems that you are experiencing. जहाँ पे आप जो समस्या का आज अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव नहीं होगा आपको। The Lord once again want to tell you फिर एक बार परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं that He loves you. कि वो आपसे प्रेम करते हैं, He has you in His mind. आप उनके मन में हैं। He's constantly and continuously watching you. निरंतर और एकटक उनकी नजर आपके जीवन Even in the midst of the deep darkness that you're in, His hand is there. His eyes are watching you. घोर अंधकार में शायद तक कि आप घिरे हुए हैं, लेकिन उनकी आंखें आपको देख रही हैं, उनका हाथ आपके जीवन पर है। Like a prodigal son, एक उड़ाव पुत्र के नाई change your mind and take a step towards going back, coming back to your father. अपने मन को बदल दीजिएगा और अपने पिता के पास, अपने अब्बा के पास वापस आ As जाइएगा। you take a step forward, जैसे आप कदम को उठाते हैं उनकी ओर, the Lord who loves you shall surely envelop you in His love. जो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं उनके प्रेम में आपको ढांक लेंगे। He will certainly lift you up to the highest वो place once again. आपको पुनः जो है उठाएंगे In the name of Jesus यीशु Christ. मसीहा के नाम से। With this encouragement in heart and ये mind, प्रोत्साहन के साथ अपने हृदय में, अपने मनों में इन बातों को रखते हुए go into the day with a smile. और दिन में जाइएगा मुस्कुराहट के The साथ। Lord shall bless you immensely in the name of Jesus परमेश्वर आपको Christ. खूब आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम God से। bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे, have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।